السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى اپنا عمل خود بنی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، آج کے اس ویڈیو میں بہت ہی زیادہ پیچیدہ، خطرناک، پاورفل اور ایک اہم موضوع پہ بات کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور وہ ہے انتخاب کس کا کرے، ہم ذات کا کہ جنات کا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، ایک ایسا پیچیدہ راز ہے جس کو اگر بندہ کوئی سمجھ لیتا ہے نا، تو اس کا عملیات کی دنیا میں سمجھتا ہوں 80% کام ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات اور پہلے ہی بتا دوں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کا کوئی مرشد نہیں ہے۔ مرشد جس کا نہیں ہے، یہ ویڈیو ان کے لیے ہے۔ جس کا مرشد ہے، ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو نہیں ہے۔ ویسے انفارمیشن کے لیے دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لیں، کیونکہ مرشد کے لیے پھر باتیں علیحدہ ہو جائے گی، اور یہاں پہ ان باتوں کا پھر اتنا اثر نہیں ہوگا۔ پہلی بات کلیئر کر دوں، پھر اس کی وضاحت بھی اگر موقع ملا اس میں یا کسی اور ویڈیو میں کہ کیوں میں نے یہ بات کہی تھی۔ ہمارے ساتھ، ہمارے زندگی میں، ہمارے عملیات میں دو چیزیں ہمارے ساتھ چلتی ہے، ایک ہم ذات، ایک جنات، اور ان دونوں کا عملیات کی دنیا میں نہیں بنتی، نہیں بنتی، نہیں بنتی۔ یہ میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، اور یہاں پہ اس بات کو میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ عملیات کے نظریے سے، اس عملیات کے نظریے سے جس عملیات کی نظر سے ہم کسی کا علاج کر رہے ہیں، یہ بات یاد رکھ لینا۔ اس کی کوشش کروں گا کیونکہ ان میں سے پوائنٹ نکل رہے ہیں، تو شاید میں دو پارٹ میں اس کو تقسیم کر لوں۔ علاج کے متعلق آج صرف ہماری بات ہوگی۔ اگر آپ لوگ ہم ذات کے عمل کرنا چاہتے ہو تو جنات کی طرف کبھی بھی نہ آئیے، مت آؤ۔ اگر آپ لوگ جنات کے عمل کرتے ہو تو ہم ذات کی طرف نہ آ جاؤ۔ اس دونوں کا آپس میں نہیں بنتا، نہیں بنتا، نہیں بنتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ذات کا اپنا ایک طاقت ہے، جنات کا اپنا ایک طاقت ہے۔ ہم ذات ہم خود ہے، ہم خود ہے، جبکہ جنات ایک مخلوق ہے۔ صحیح ہے، جنات ایک مخلوق ہے، ہم ذات ہم خود ہیں۔ ہم ذات کا جب کوئی کام ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم مصلی پہ بیٹھتے ہیں، چراغ کا استعمال کرتے ہیں، تسبیح اٹھاتے ہیں، تیلیپیتی کا استعمال کرتے ہیں، ہپنوٹائزم کا استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح شمع بینی، نقش بینی، اور مختلف تصویر بینی، سورج بینی، چاند بینی، ان تمام کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ایک بندے پہ عمل کرتا ہے، ایک بندے پہ ہم تعویذ کرتے ہیں، ایک بندے پہ توجہ کرتے ہیں، تو تب ہمارا عمل کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن جنات، حاضرات، موکلات اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ جنات، موکلات، حاضرات کے لیے ہم تو یا کسی جن، حاضرات، موکلات کسی چیز، روح کو تسخیر کر کے اس کو بلا کے ان کو حکم دے کے، یا اگر دوست وغیرہ ہے تو ان سے التجا کرتے ہیں کہ یہ کام ہے، اس کا یہ پلا کام آپ جا کے کر لو علاج کے متعلق۔ علاج کے متعلق یعنی اس پہ جنات ہے تو آپ اس جنات سے مذاکرات کر لو، ان سے کہو کہ بھئی آپ لوگ چلے جاؤ، اس کو چھوڑ دو، یہ انسان ہے۔ اگر اس پہ جادو کسی نے کیا ہے تو اس جادو کا توڑ نکال دے، اگر اس پہ کسی نے حسد کیا ہے تو اس حسد کا توڑ نکال دے۔ اگر اس طرح کے معاملات کے جنات کے ساتھ اس کا وابستہ ہے، جس طرح ہم انسان ہے، اگر ہم انسانوں میں سے دو بندوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو اس کے صلح کے لیے یا تو پولیس آتی ہے، یا گھر والے آتے ہیں، یا کچھ علاقوں میں جرگے کا، پنچایت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی پہ کوئی جادو، جنات وغیرہ ہوتے ہیں تو ہم جنات کو بلاتے ہیں، حاضرات کو بلاتے ہیں، اور اس کی زبان میں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں سے ہم اللہ کی کوئی کلام پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم کلام ہوتے ہیں، مطالبات کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو چھوڑ دو۔ تو یہ دونوں کیٹیگری علیحدہ علیحدہ ہے، یہ دونوں معاملات علیحدہ علیحدہ ہے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں اگر ہے کہ ہم حمزات اور جنات کو ایک ساتھ بیچ سکتے ہیں، تو اس کا جواب بل ہے نہیں، آپ لوگ ایک ساتھ نہیں بیچ سکتے۔ لیکن اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کر سکتے ہو ذاتی طور پہ، تو میں کہوں گا کہ الحمدللہ میں کر سکتا ہوں، لیکن میرے پاس یہ ہے، تو اس یہاں پہ یہ بات پھر اور موضوع کی طرف چلی جاتی ہے، کیونکہ ویڈیو کی شروعات میں نے کہا تھا کہ جس کا مرشد نہیں ہے ان کے لیے یہ ویڈیو ہے، جس کا مرشد ہے ان کے لیے اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں کوشش کروں گا اس کا پارٹ 2 لا دوں کہ مرشد جب ہوگا تو پھر ہمارے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ جنات اور حمزات آپس میں ان کا بنتی نہیں ہے، ان کے تکرار ہوتے ہیں، اس کے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جنات پھر آپس میں ہی لڑ جگڑ لیتے ہیں۔ تو اس لیے یا تو حمزات سے کام لیں گے
या जिन्नात से काम लेंगे। और इसमें से बाज़ दफ़ा जब हम शाहीन अमलियात कोर्स करवाते हैं या तस्वीर परिया कोर्स करवाते हैं या हिफाजती हिसार का कोर्स करवाते हैं, तो कुछ लोगों को ये दोनों चीज़ें ज़ाहिर हो जाती है, हाज़िर होती है। बाज़ दफ़ा हमज़ात भी हाज़िर होते हैं और बाज़ दफ़ा जिन्नात भी। हालांकि जो हमारे चिल्ले हैं, हमने उसका जो बुनियाद रखा है वो जिन्नात के नाम पे रखा है, तस्खीरी हाजरात के नाम पे हमने उसका बुनियाद रखा है। लेकिन कुछ लोगों के हमजाद भी आ जाती हैं, तो उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने पहले से ही हमजाद के आमाल किए होते हैं, या बचपन से ही, क्योंकि मैं कहता हूँ कि आमिल और इंसान बचपन से ही पैदाइशी बना होता है, बस उसको संवारने की ज़रूरत होती है। तो उनका हमजाद उसके साथ पहले से ही एक्टिव होता है या उनको पता नहीं होता। तो जिन्नात के आमाल से भी हमजात को ताकत मिलती है, तो फिर दोनों आपस में आ जाते हैं, लेकिन होते हैं खतरनाक मामलात आपस में। इसलिए फिर कहते हैं हम पे चिल्ला उलट गया, हमारे साथ फलां नुकसान हो रहा है, हमें ये नुकसान हो रहा है। उसकी वजह ये कि जिन्नात और हमजात का आपस में तकरार नहीं होते। कुछ दिन पहले एक साहब ने भी यही मसला मेरे से बयान किया, और उसकी बात ही ये दोबारा मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरी पुरानी वीडियो पड़ी है, लेकिन उसको ढूंढना मुश्किल है। यूट्यूब पे कई सब वीडियो पड़ी है मेरी। तो उसके लिए फिर मैंने उनसे कहा कि आपको मैं चांस दूंगा, यानी आपसे ही मशवरा कि आपने इंतखाब किसका करना है, फिर उनमें से एक को बन करके दूसरों को चलाना होगा। यही का यही मामला एक और शख्स का भी था, पठान था, हमारे इलाके के आसपास का ही रिहायशी था। उन्होंने जिन्नात के अमाल भी किए, हमजात का भी। फिर उनमें से एक चीज़ को बंद करने पे मैं हकीकतन बता रहा हूँ कि लाखों का खर्चा आ चुका था, 1 लाख से लेकर 3 लाख के आसपास खर्चा लग गया उस चीज़ को कंट्रोल करने की और संभालने की। और ये हकीकत है, ये मैंने इसकी कई बार वजाहतें की है कि इस हालात को संभालने के लिए, निपटाने के लिए काफ़ी खर्चा आता है, काफ़ी ज़्यादा खर्चा। लेकिन उसकी वजाहत करना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। आप लोगों ने इंतखाब करना है हमज़ात का। हमज़ात के अमाल को फिर आगे लेके जाओगे। हमज़ात के अमाल में से मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ कि अगर आप लोग इस तरह इलाज करना चाहते हो तो फिर आप लोग हमज़ात की तरफ चले जाइए। अगर आप लोग इस तरह इलाज करना चाहते हो तो आप जिन्नात की तरफ चले जाइए। मैं दोनों पॉइंट आप लोगों के सामने रख देता हूँ। पहले रखता हूँ हमज़ात का। अगर हमने हमज़ात के ज़रिए किसी का इलाज करना है, मिसाल के तौर पे जादू, जादू का इलाज करना है, तो हमज़ात के ज़रिए पहले हम खुद को किसी तरतीब से, यानी बैठ के कोई पढ़ाई करके अपना हिसार लगा लेंगे। सही है? अपना कोई हिसार लगा लिया, उस अमल के लिए होते हुए, अमल का हिसार लगा लिया, फिर अपने हमज़ात से मुखातिब हो जाएँगे। यहाँ पे कुछ लोग उसी वक़्त हाज़रात को बुलाते हैं, और मैं हमज़ात की बात कर रहा हूँ, तो हमज़ात से ही मुखातिब होने की मैं बात करूँगा। या किसी और के हमज़ात उनके पास है, तो उनसे मुखातिब हो जाएगा, उनसे बात होगी कि भला बंदे पे जादू है, कैसे हिसाब होगा। फिर उसके जो जिस पे जादू है, उस बंदे के पास हमारा हमज़ात या जिसका हमज़ात होगा वो चला जाएगा और आपस में बात कर ले कि भाई इस पे तो जादू है, और जादू आया है जिन्नात से। आप हो हमज़ात, मैं भी हूँ हमज़ात। तो अब इसका हल, ये मैं एक मुज़ाकरा बता रहा हूँ कि फिर वो पहले ये कहेंगे कि इसका हल क्या है। अगर वो कहते हैं कि हमारे पास इसका हल नहीं है क्योंकि ये जिन्नात है और हम हमज़ात हैं, तो फिर आप जाके अपने आमिल से कहो कि मुझे ताकत दे दे, मुझे उसके मुतबादिल में कोई ऐसी पढ़ाई बता दे जिससे वो जिन्नात कमज़ोर हो जाए। जिन्नात कमज़ोर हो जाते, जब हम कोई पढ़ाई करते हैं तो हमारे हमज़ात को ताकत मिलती है। तो अगर हमारे हमज़ात को हमारे से ताकत मिलती है, तो फिर वही जादू उसका तोड़ हो जाएगा। उसके लिए हम किसी हाज़रात वगैरह को मुश्किल में नहीं डाल सकते। लेकिन उसके पीछे आप लोगों को पढ़ाई मुसलसल करनी पड़ती है। आप लोगों के पास कोई हिफाज़त हिसार होना ज़रूरी है। उसके लिए आपके पास हमज़ात का ताकतवर होना चाहिए, और उसके साथ आपके हमज़ात से बातचीत करने का तरीका आना चाहिए। ये हमज़ात की तरफ जो लोग जाना चाहते हैं, और उसी के बाद हमज़ात को राज़ी करना भी उसको आना चाहिए। ये है हमज़ात के पॉइंट। अब आता हूँ जिन्नात की तरफ। अगर किसी ने जिन्नात से किसी का इलाज करना हो, जिन्नात के ज़रिए किसी से हम कलाम करना हो, तो फिर वही बात कि यहाँ पे आपने अपने जिन्नात को या उसकी जिन्नात को बुलाना है, और उनसे बात करना है कि भई हाँ, क्या तरतीब है, क्या तरीक़ाकार है। आप लोगों किसी ने भी भेजा है, मानता हूँ, गलती जिसकी भी है कोई बात नहीं। अब मैं आया हूँ मुज़ाकरात करने के लिए, या आप लोगों को कैद करने के लिए, या आप लोगों को जिलाने के लिए। बातें तो 2-3 ही हो गई। अब आप लोग बताइए कि हमने किस स्पीड में जाना है, क्या करना है, मुज़ाकरात करने हैं, जादू को पलटाना है, या आप लोगों ने जलने के लिए तैयार होना है। तो यहाँ पे जिन्नात या जो भी हाज़रात वगैरह के मामलात होंगे, वहाँ पे अगर इंसान के पास मिसाल के तौर पे जिन्नात वगैरह कमज़ोर है,
तो फिर वो क्या करेंगे, जिन्नात अब उस आमिल के हमजाद से बात कर सकता है, उसको मनाने की कोशिश कर सकता है। एक तरीका ये है। एक तरीका ये है कि फिर वो जिन्नात अपने किसी कबीले को, अपने किसी आमिल को, अपने किसी बड़े को, अपने किसी बुजुर्ग को उसके मुकाबले में ला सकते हैं, और यहाँ पे आमिल बिल्कुल साइड पे हो सकता है। हमजात के मामले में आमिल साइड पे नहीं हो सकता, इस बात को याद रख लेना। हमजात के मामले में आमिल साइड पे नहीं हो सकता। मामूली सी नापाकी, मामूली सी गंदगी, मामूली सी बेवजू, मामूली सी गलती, उसके ऊपर ही हमजात को कंट्रोल कर सकता है, और उसके हमजात को अगर कंट्रोल कर दिया आमिल ने, तो फिर इसको नुकसान हो सकते हैं। लेकिन जिन्नात के मामले में ये चीज़ इस तरह नहीं होती। जिन्नात अगर हमारे पास एक अमल के मुवक्किलात, या हमने किसी जिन के दोस्ती की, या उससे काम लेने के लिए मुवक्किलात वगैरह किसी पढ़ाई को हाजिर किया, अगर हमारी ताकत कमज़ोर है और हम उस मुवक्किलात को उतनी ताकत और ग़िज़ा नहीं दे सकते, जिसकी वजह से हम उस सामने वाले जादूगर का मुकाबला करते हैं, तो फिर यहाँ पे हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुयस्सर होती है, काम आती है कि या तो ये कि उस जिन्नात के ज़रिए हम किसी और जिन्नात को हदिया दे दें, गोश्त दे दें, खुशबू दे दें, सदका दे दें, पैसे दे दें, और किसी और आमिल, जिन आमिल से बात कर ले, उनसे मशवरा कर लिया, उनसे सलाह कर लिया, उस एक आमिल दूसरे आमिल से अपने साथ दोस्ती करके उनसे कहे कि ये चीज़ आप लोगों ने तोड़नी है। तो यहाँ पे जिन्नात का काम कुछ ज़्यादा होता है, जिन्नात कुछ ज़्यादा तादाद में आते हैं, और जिन्नात के आपस में ताल्लुक जल्दी बन जाता है। इसलिए हाज़रात और जिन्नात और मुवक्किलात के ज़रिए वो इलाज थोड़ा जल्दी हो जाता है। लेकिन क्योंकि हमज़ात, मैं तो अच्छा होऊँगा या मैं बुरा होऊँगा, सामने वाला अच्छा है कि बुरा है, उनसे सिलाह करना, उनसे हम कलाम होना, उसको मनाना बहुत मुश्किल काम होता है। और क्योंकि हमज़ात इंसान के साथ अपने एक वाबस्ता हैं, तो हमज़ात के लिए एक से दूसरे हमज़ात आमिल को ढूँढना थोड़ा-सा मुश्किल है मौजूदा हालत में। थोड़ा-सा मुश्किल है मौजूदा हालत में, थोड़ा-सा मुश्किल है मौजूदा हालत में। ये लफ़्ज़ मैंने कई बार इसलिए दोहराया, क्योंकि आमिलीन की वो तरतीब ही नहीं है, कोई पढ़ाई करने वाला है ही नहीं। हर बंदे ने अपने हमरात का बेड़ा ये गर्क कर दिया है, बर्बाद करके रख दिया, तो ये मामलात कुछ ज़्यादा ही मसले मसाइल वाले होते हैं। अगर कोई कहता है कि आपका इंतखाब कौन-सा है, तो मैं उस साथी को तो मैंने बता दिया था कि मेरा इंतखाब फलाँ है, लेकिन यहाँ पे खुलेआम नहीं बता सकता, क्योंकि उस चीज़ को मुझसे, यानी मुझे खतरा हो सकता है और लोगों से। लेकिन मैंने खुद इन दोनों में से एक का इंतखाब किया, काम मैं दोनों से लेता हूँ, और उसकी कोई वजह है, कोई रीज़न है किसी तरीके से, क्योंकि मेरे पास ये है। अल्हम्दुलिल्लाह ये है, और पावरफुल है, और बहुत अच्छे और आले मयार पे है, तो इसलिए मैं दोनों से काम ले सकता हूँ, दोनों को इस्तेमाल कर सकता हूँ, दोनों से बातचीत कर सकता हूँ, दोनों से मुज़ाकरात कर सकता हूँ, और कभी-कभार कर सकता हूँ, हर बार नहीं। तो इसलिए इस चीज़ की मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों ने इंतखाब करना है, तो करना एक का होगा। अगर खुदा ना ख़ास्ता 2 चीज़ें आपके आपस में आई, तो मैं ऑन यूट्यूब, ऑन कैमरा ये बात बता रहा हूँ कि वहाँ पे उन दोनों को सँभालने के लिए आपके पैसे लगेंगे। अगर कंजूसी की आप लोग कहते हो कि नहीं ये है, वो है, तो खुदा ना ख़ास्ता नुकसान का ज़िम्मेदार बंदा खुद हो सकता है। क्योंकि ये मामलात बहुत ही पेचीदा होता है। हाँ, मुर्शिद आ जाए, आपस में दोस्ती हो जाए, तरतीब बन जाए, तो फिर इसके जो कमालात होते हैं, जो रिज़ल्ट होते हैं, तो बड़े-बड़े जिन्नात, बड़े-बड़े जादूगर आपके सामने बेबस होता है। लेकिन अगर दोनों को आपस में मिला दी जाए, इन दोनों को आपस में मिला सकते हैं, लेकिन फिर वही बात खुलेआम इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे केस आते हैं, फिर मैं उनसे हदिये की बात करता हूँ, पैसों की बात करता हूँ, तो कहते हैं कि नहीं, ये कर रहे हो, स्कैम कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो। तो खुलेआम यूट्यूब पे ही इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने खुद भी आपस में ताल्लुकात बनाने हैं, तो आपके इस चीज़ पे पैसे लगने हैं, हदिया लगना है, पढ़ाई लगनी है, खुशबू लगनी है, तस्बीहात लगनी है, इंतखाब आपने करना है, किसकी तरफ जाना है। अब इस और चीज़ को मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा, पार्ट 2 इसकी बना दूँ कि किस तरीके से ये बातें होती है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।